Yes, basically, just a minute. सबको ज्वाइन करने दो। अब ऐसा है कि हम जो कराए वो उसका वीडियो भी देख ले लो, अगर जरूरत होगा तो बाद में देखेंगे। एक्चुअली today I want to start statistics because this is very important portion. तो देखो, बाकी स्टूडेंट्स के लिए वेट करते हैं। मेनली स्टैटिस्टिक्स में योर टारगेट विल बी फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. द चैप्टर इज description. अच्छा, I have given the, just a minute, I have given the answers to all the questions which I have given last day. So basically our target mainly to be on the safer side because yeah. चलो हम स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आएंगे तो ठीक है, तो देखते हैं स्टैटिस्टिक्स. अच्छा, लॉग का आंसर देख लो, अगर किसी को कुछ भी पूछना है वो क्लास के बाद तुम लोग पूछ सकते हो. उसका सॉल्यूशन करके समझा देंगे क्लास के बाद, क्योंकि हमको लगता है कि व्हाट आई हैव गिवन यू मे और कैन डू होपफुली. नाउ स्टैटिस्टिक्स आज शुरू करेंगे. पहला टॉपिक है स्टैट्स का. स्टैट्स में टोटल कितना चैप्टर है? स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन टोटल कितना चैप्टर्स हम लोग को मिलेगा? टोटल चैप्टर्स हम लोग के पास है 7 चैप्टर्स वी हैव. तो ये 7 चैप्टर में वी यूज टू गेट some scoring chapters, but some chapters are bit critical बोलेंगे नहीं, but हम बोलेंगे कि वो थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत, उसमें थोड़ा समझने का जरूरत है. नाउ देखो, यस, statistics का 7 chapters are there. There are 7 chapters. What are the chapters? If I discuss, then you have done some of the topic before. First topic, which is most important, is description of data. From this topic, we get a lot of questions. Description of data, actually introduction of statistics. In this topic, we mostly face questions related to yeah, yes, of course. You are getting that. I have given that already. Of course, you are getting. Now, basic idea of this topic. What is statistics? Means data. Chapter deals with data. Data क्या है? How we record this data, enter data record कैसे करते हैं? तो ये 2 टाइप होता है, एक
क्वांटिटेटिव डेटा जिसका मेजरमेंट होता है क्वांटिटेटिव, द अदर वन इज क्वालिटेटिव। तो स्टैट्स का शुरुआत होगा क्वालिटेटिव, शुरुआत है दो, पहला चैप्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से। So what is description of data? We can see it is a topic deals with some concept which you tell mostly students के language में theory. Most of the students say कि सर ये theory है। हाँ ये theory है, but theory बोल के नहीं पढ़ना चाहिए। This topic statistics total topic whatever we are dealing is basically concept then practical, पहले concept फिर practical questions they ask both from concept and practical part, ज़्यादा 50-50 भी कभी कभी हो जाता है। तो quantitative माने some variable जिसका value है, variable माने which can have some value, and qualitative it is called attribute which are not having any value, just quality, non-measurable, non-measurable, measurable नहीं है, value बने measurable है। तो जैसे color of anything, this is a data. Of course if I want to see some items, colors are of course we record which are the colors, that is not measurable attribute. When I am saying how many are there and what are the values, then that is variable. So this way we proceed with this topic called description of data. Lot of things we have to learn. I have one idea because this is a conceptual chapter, so ये हम लोग को थोड़ा बहुत तो आता है, we know bit of ideas. So हम एक काम पहले करते हैं, always स्टैटिस्टिक्स का शुरुआत डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से होगा, तो वो हम याद रखेंगे, लेकिन इसका खाली प्रैक्टिकल पोर्शन, only the practical aspects of this topic I want to do now. Maximum 2 questions come from this topic as a practical, but concept based questions 5 to 7 questions will come. 5 to 7 questions will come. Now some of you have joined a little late. For you, first thing that what I have discussed before you have joined, ऐसे देखो हम तो लॉग का आंसर दे दिए, लेकिन जिसका जो नहीं हुआ तुम लोग मेरे को लिख दो, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे कि तुम लोग देख के समझ जाओ। अगर फिर भी नहीं होता है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर लेना। हम ऐसा करना चाहते हैं, आई वांट टू डू दैट कि पहले स्टार्ट करते स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक से 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, वो बता रहे थे कि है क्या, इसमें स्टैटिस्टिक्स का शुरुआत का पोर्शन डिस्कस करना है। हम उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक आई विल डिस्कस। सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, दिस इज द सेकेंड चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर दोनों मिला के, so if I look at the दोनों central measures of central tendency and dispersion दोनों, तो ये टॉपिक से कम 7 क्वेश्चन आएगा, प्लस 7 से ज्यादा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कम 11 से 12 क्वेश्चन आएगा, तो 11 प्लस, तो ये दोनों चैप्टर से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आ जाएगा, 20 क्वेश्चन आसपास। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दीज टू आर। तो एक स्टूडेंट अगर बहुत केयरफुली ये दोनों टॉपिक कर लेंगे तो बहुत आराम रहेगा, बहुत, इसमें से मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंडेक्स नंबर, वो एकदम लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 5 से ज्यादा आएगा। तो अगर ये ऐड करोगे तो देखो कम से कम 23-24 क्वेश्चन हो जा रहा है। फिर है कोरिलेशन रिग्रेशन, हम एक बार लिख दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को हल्का आइडिया है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये टॉपिक से कम से कम देख रहे हैं हम आजकल 5 के आसपास,
तो ओवरऑल अगर एक स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे तो 30 के आसपास पहुंच गया, 30 के आसपास। 40 मार्क्स पास मार्क्स होता है। हम ये सोच के चलते हैं ऑलवेज कि स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स 100 मार्क्स में कितना मार्क्स पास मार्क्स होगा? 40। तो 40 का स्टैट्स का इस पोर्शन से ही 28 मार्क्स के आसपास मिल जाएगा, ये जो लिख दिए। तो हम ये चैप्टर्स को बहुत जोड़ देंगे। बट एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोबाबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट रिक्वायर मैथमेटिक्स। प्रोबाबिलिटी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, बट इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। बाकी सब मैथमेटिक्स कम लगेगा, प्रोबेबिलिटी से कम 6 से ज्यादा, 6 के आसपास, एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से वही अप्रोक्सीमेटली 5 से 6। तो दिस इज योर टोटल आइडिया ऑफ वही 5 से ऊपर। तो ओवरऑल मिला के 40 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग बहुत केयरफुली पढ़ लेंगे। तो हम स्टैटिस्टिक्स खाली नहीं करेंगे, एक खाली स्टैट्स करते रहेंगे ऐसे नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा थोड़ा कम करके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के लिए अलग से हम क्लासेस डिस्कशन रखेंगे, एंड में रखना चाहते। पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर जोर देंगे। सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट करके हम मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर करेंगे जिससे कि प्रोबेबिलिटी हो जाए। प्रोबेबिलिटी हम पहले प्रोबेबिलिटी करा लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से जो 6 क्वेश्चन आता है वो तुम लोग आराम से कर सकते हो। आई वांट दैट स्टैट्स में कम से कम 30 तुम लोग का आ जाए, 30 के ऊपर। तो हाउ टू स्कोर 30, दैट इज माय फर्स्ट टारगेट मिनिमम। हम देखना चाहते कि यू आर थ्रू, एकदम श्योर, आराम से निकल जाओ। किसी को अगर सोचना है कि हम 100 में 100 लाएंगे, दैट इज ओके, ऑब्वियसली दैट इज a target of all the students, but I think main target is to be true सब के लिए, हर स्टूडेंट्स का, कोई भी स्टूडेंट्स मैथ्स में अटक ना जाए। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में हम पहले वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल क्या है? वैल्यूज है, जिसका वैल्यू है वो 2 टाइप ऑफ वैल्यू होता है, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस 2 टाइप ऑफ वैल्यू हम लोग देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट में फर्क क्या है? डिस्क्रीट माने आइसोलेटेड वैल्यूज, माने जैसे हम लोग देखेंगे, एक चैप्टर है हम लोग का मैथमेटिक्स में, सेट, और ये एनी वैल्यू, सेट बोल के एक चैप्टर है। सेट माने कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे x इज 1 2 3, तो ये एक टाइप हो गया, और यहाँ पर लिख रहे हैं x 1 से 3। तो दोनों में फर्क क्या है? इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन x इज 1 2 3, बहुत जरूरी है, ये डिस्कशन बहुत जरूरी है स्टैट्स में जाने से पहले। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 2 3, तो x का वैल्यू 1 2 3 खाली हो सकता है। दिस आइसोलेटेड पर्टिकुलर वैल्यूज, 3 वैल्यू है। बट यहाँ पर हम वो नहीं कर सकते कि यहाँ पर 1 2 3 है। 1 से लेके x का वैल्यू 3 तक कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू, 1.1 1.2 2.1 1.9 2.9, anything. So this is continuous, any value, and here it is isolated. So both type of variables we used to see. If you ask me any question like number of yes, phone calls, how many phone calls you receive in your mobile? Obviously that phone calls का variable जब होगा, फोन का आज कितना फोन मेरे पास आया, वो आइसोलेटेड वैल्यूज में गिनेंगे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन फोन कॉल्स का लेंथ, एक कॉल जो बोलते हैं कॉल लेंथ, कॉल का जो लेंथ है, कितना टाइम कॉल में स्पेंड कर रहे हैं, वो एक कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये हम लोग और देखेंगे, एग्जाम्पल्स और देखना है। याद रखो, फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिकल आइडिया, वेरिएबल्स को हम लोग डिस्क्रीट में देखेंगे, तो वो अलग अलग वैल्यूज में, और कॉन्टिन्यूअस होगा वो। अब ऑकरेंसेस, कितना बार कोई वैल्यू आया, ऑकरेंसेस को हम लोग बोलते हैं वेटेड। वेट्स कितना है वैल्यूज का, ऑकरेंस को ऐसे तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली यू नो फ्रीक्वेंसी कितना है, दैट इज कॉल्ड इन स्टैटिस्टिक्स वेट ऑफ द वैल्यू। फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेट बोलते हैं। वेट माने इंपॉर्टेंस,
कोई वैल्यू कितना बार एनी वैल्यू कितना बार अपीयर कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू होता है। जैसे नंबर ऑफ फोन्स और नंबर ऑफ मिस्टेक्स करते हैं। चलो एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स, नंबर ऑफ पेजेस। एक ऐसा डेटा माने इंफॉर्मेशन मेरे पास है। डेटा माने एक सिंगल वर्ड रिप्रेजेंटिंग द वर्ड डेटा इज इंफॉर्मेशन। So we are discussing quantitative information or data, not qualitative. Statistics basically deals with quantity, not quality normally. तो नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स मान लो दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन तुमको इंफॉर्मेशन दे दिए और नंबर ऑफ पेजेस लिखा हुआ है 32, 50, देन 48, then 32, 31 and then 11. Now my question is, if you look at this table is called frequency table, because what is the idea of frequency? Frequency distribution also. Table mane distribution. What is the idea of the table? These are the values which occurs these number of times. These are x. X mane value. When we say x, then we want that numbers which are denoting the value. How many misprints are there? That is variable. It is changing. And how many times it is occurring? That is frequency f. So which is f? The number of occurrences. 0 misprint है कितना पेज में? 32 पेज में. So वो हो गया तुम्हारा frequency of these variable. So this table is always first column is variable, second column is frequency, weights of the values. ये सब values का weight ये है. weight माने frequency बोला जाता है. Now frequency table में पहला point जो देखते हैं कि total कितना है. What is the total? So total means if you add, when you add, then what you are getting. So what you are getting is the total frequency. And you know, when you are adding, then you are getting actually 17, 172. You are adding this one. This is actually your total frequency. We write summation f. बहुत डिटेल ऐसे थियोरिटिकली सीखना नहीं है, बेसिक नॉलेज. समेशन एफ मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउ मेनी पेजेस जो है वो कितना है. नाउ कमिंग टू इसके अंदर कोई कुछ क्वेश्चन हो सकता है इस टेबल के अंदर से. हाँ, इस टेबल से ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा. इसको बोलेंगे अनग्रुप्ड. व्हाई? व्हेन वी डिस्कस फ्रीक्वेंसी, I have started my discussion from the practical aspect of this chapter as ungrouped frequency क्या है, फिर बोलेंगे group frequency कैसे दिखते हैं. Ungrouped frequency distribution. So what is ungrouped frequency distribution? These are the values, these are the frequencies. These values are अलग अलग वैल्यू, ये उसका फ्रीक्वेंसी है. तो अनग्रुप्ड है तो कुछ ग्रुप्ड के बारे में भी हम बताएंगे आफ्टर दिस एग्जाम्पल. नाउ we used to see there are so many ways of recording the frequencies and data. I'm not going in detail. There are methods, secondary data, primary data, methods of collection, that are all there in the course. But I want what type of practical question, mathematical question क्या हो सकता है. इस टेबल से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है. ऐसा एक टेबल दे दिए, एक टेबल दे दिए और इस टेबल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हमको सॉल्व करके निकालना होगा. कॉन्सेप्ट तो हम लोग को देखना ही होगा. स्टैटिस्टिक्स में बहुत कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा. बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक क्वेश्चन हो सकता है, एक टाइप फाइंड. ये क्वेश्चन है इस टेबल के बाद. ये टेबल दिया हुआ है, उसके नीचे क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी पेजेस. इस टाइप का फाइंड हाउ मेनी पेजेस हैव. Find how many pages have at most, please be careful, at most one misprint. At most one misprint. Please be careful with the word at most. I would like to discuss two very important words now.
वन इज एटमोस्ट, अनदर विल बी एटलीस्ट। पहले एटमोस्ट देखते हैं। एक टेबल दिया हुआ, ये टेबल है फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर मिसप्रिंट्स ऑफ ए बुक। एक बुक के अंदर मिसप्रिंट्स कितना है वो दिया हुआ। हम देख रहे हैं 0 से 4 तक मिसप्रिंट्स बुक में है। पेजेस कितना है, ये सब पेज 172 पेज का बुक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ मेनी पेजेस हैव at most one misprint. Now how we'll answer, what is the meaning of the word at most? Maximum one माने one और less misprints कितना पेज में है। at most one बोलने से, whenever we see the word at most, that means maximum, ज्यादा से ज्यादा एक misprint हो सकता है। तो at most one माने one और less misprints कितना पेज में है। तो इस टेबल से देखेंगे one misprint है तो वो कितना पेज में है, वो 50 पेज में वन मिसप्रिंट से। तो वन मिसप्रिंट से 50 पेज में। उससे कम लेस माने 0 मिसप्रिंट से तो कितना पेज में, 32 पेज में। तो वन और लेस, तो ये मिसप्रिंट से तो कितना पेज में, ये वन मिसप्रिंट और लेस माने नो मिसप्रिंट से ये दोनों ऐड कर दो, क्योंकि ये दोनों टोटल करना है, वन और लेस बोला है। तो आंसर 82 पेजेस होगा। आंसर इज 82। वंस मोर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दे सकते हैं। क्वेश्चन देंगे, एक टेबल ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं हम। ये टेबल एक जनरल टेबल तुम लोग को समझाने के लिए दिए, और उस टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितना पेज में, इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना पेज में एटमोस्ट वन माने मैक्सिमम वन मिसप्रिंट है। इसको दूसरा लैंग्वेज में बोलेंगे, इफ आई टेल दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, हाउ मेनी पेजेस हैव वन और लेस मिसप्रिंट। तो ये हो गया एटमोस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो हम लोग वन और उससे कम, वन मिसप्रिंट 50 पेज में है, उससे कम 0 मिसप्रिंट 32 पेज में है। अगर हम पूछेंगे हाउ मेनी पेजेस, हाउ मेनी पेजेस, इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी टेबल के ऊपर, समथिंग लाइक दिस कॉल्ड डेटा इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्ट। हाउ मेनी पेजेस माने डेटा इंटरप्रिटेशन माने ये टेबल देख के कुछ एक्सप्लेन, कुछ आंसर देना है। हाउ मेनी पेजेस हैव एट लीस्ट, दिस इज द सेकंड टाइप, एट लीस्ट at least three misprints, at least 3 misprints. So now what we will think, what we will think, क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन में। एट लीस्ट 3 मिसप्रिंट्स बोले तो कैसे आंसर देंगे। पहले बोले थे एटमोस्ट 1 के बारे में, अब पूछ रहे हैं एटलीस्ट 3। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग एटलीस्ट। एटलीस्ट माने मिनिमम, एटलीस्ट माने पहले एटमोस्ट बोले थे, अब एटलीस्ट बोल रहे तो मिनिमम। मिनिमम माने 3 मिनिमम, मिनिमम 3 और मोर कितना पेज में है मिसप्रिंट्स। तो पहला क्वेश्चन था एट मोस्ट 1 मिसप्रिंट, हम सीधा स्टैट्स में एंटर किए विद द आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली वी आर डीलिंग द फ्रीक्वेंसी two types, one is at most type of frequency, then we have discussed one at most बोले थे तो one और less। अब सेकेंड जो आइडिया डिस्कस कर रहे हैं उसमें बोल रहे हैं एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 माने 3 और मोर, तो 3 हो सकता है और 4 मिसप्रिंट्स हो सकता है। 3 मिसप्रिंट से 31 पेजेस में और 4 मिसप्रिंट से 11 पेजेस में। तो 3 और मोर मिसप्रिंट्स माने 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, तो टोटल होगा, और मोर माने टोटल हो गया 42 पेजेस। आंसर 42। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव फेस्ड। वन इज एट मोस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा या 1 और लेस पूछा है, तो ऊपर से ऐड किए थे 32 और 50 ऐड करके 82 आंसर आया था। अब पूछे कि एटलीस्ट 3, तो वो इधर से नीचे तक ऐड किए, इधर से नीचे तक वो ऐसे ऐड किए थे, अब ऐसे ऐड कर रहे हैं नीचे से। ये दो टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐड करने का मेथड को हम लोग और एक नाम से भी बोलते हैं, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम आ रहे हैं उसमें, उसी क्यूमुलेटिव की तरफ जाएंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक टेबल है जिस टेबल में एक्स माने वैल्यू और उसका रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एक साथ प्रोवाइड करते, तो वो देख के क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसे एटमोस्ट या एटलीस्ट या मिनिमम या मैक्सिमम कितना
केसेस में होगा वो पूछेंगे तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिख देंगे। सो दिस इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ भी क्वेश्चंस आएगा तो ऐसे देखेंगे, दिस इज अनग्रुप्ड। नाउ कम टू डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ग्रुप फ्रीक्वेंसी में बहुत कुछ हम लोग को समझना है। तुम लोग जानते हो ग्रुप फ्रीक्वेंसी माने क्लास इंटरवल है। हम सीधा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एंटर किए बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन aspect of statistical data because we calculate on this idea. ग्रुप फ्रीक्वेंसी माने क्लास इंटरवल रहेगा। व्हाट इज क्लास इंटरवल माने ग्रुप को एक एक क्लासेस माना जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल, वन इज ओवरलैपिंग क्लासेस, another is non-overlapping classes. So there are two types of class, one is overlapping class, another is non-overlapping class. What is overlapping class? What is non-overlapping class? Overlapping, non-overlapping. Overlapping classes like example से समझाएंगे तो जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे इस टाइप का एक्सेट्रा। पर जब हम लोग बोल रहे हैं 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, तो ये नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। ये क्लास का जो एंड पॉइंट है, ये लोअर एंड एंड ये अपर एंड, इसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री। सो व्हाट इज क्लास बाउंड्री? क्लास बाउंड्री आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द ओवरलैपिंग क्लासेस। और इस क्लास का जो एंड पॉइंट है उसको बोलते हैं क्लास लिमिट। So there is a very big difference between class limit and class boundary. Class boundaries are overlapping classes का lower and upper end are called class boundary. We call UCB and LCB lower class boundary, upper class boundary. And here we call LCL and UCL. LCL माने lower class limit and ये upper class limit. एक बहुत important issue है। 10 to 20 means 10 to 20 नहीं, below 20. Always this is the concept. 10 to 20 doesn't mean that 10 to 20, 10 to below 20, then 20 to below 30. Why? Because we cannot count 20 in both the classes. So what we do, etc. कि ये जो class boundary है उसका अपर क्लास बाउंड्री इज एक्सक्लूडेड, अपर क्लास बाउंड्री आर एक्सक्लूडेड, वी डोंट इंक्लूड द अपर क्लास बाउंड्रीज। सो क्लास बाउंड्रीज आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्लासेस। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव माने अपर एंड्स का नॉट इंक्लूडेड। एक्सक्लूसिव क्लासेस मीन्स ओवरलैपिंग क्लासेस डोंट include the upper end, but in this case it is 10 to 19, then 20 to 29. That means 10, 19 both are included, 20, 29 both are included. Therefore here they are inclusive classes. So what is the inclusive classes? Inclusive माने जो क्लास ओवरलैपिंग नहीं है वो इंक्लूसिव क्लास होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि इंक्लूसिव क्लासेस है या एक्सक्लूसिव क्लासेस है। ये क्लास दे दिए और पूछे कि ये इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। दिस इज एक्सक्लूसिव टाइप बिकॉज अपर एंड्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 40 जो लास्ट में लिखा हुआ है दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस डेटा, बट हियर इट इज 39 होगा। एक्चुअली हम गलती से 49 लिख दिए, सॉरी, डजंट मैटर। 39 जो लास्ट में है वो इंक्लूडेड है, और 39 होने से बेटर होगा, सेम रहेगा। सो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस? इंक्लूसिव क्लास किसको बोलेंगे? क्लास। एक्सक्लूसिव क्लासेस बोलेंगे क्लास बाउंड्रीज को, और इंक्लूसिव क्लासेस बोलेंगे इंक्लूसिव माने क्लास लिमिट्स। नाउ देयर इज अ स्मॉल पॉइंट, व्हिच वन इज प्रेफरेबल in graphical presentation of frequency distribution, because it is a very important idea to present the statistical data in graphical form. We prefer always class boundaries. So remember, class boundaries are preferable in graphical presentation of data. Class boundaries are preferable in graphical presentation of data. When we present the data in graphical form, in graph paper we present, then
representation. We prefer class boundaries. So there is a problem. If you have class limit, then how we can have the class boundaries? अगर मेरे पास क्लास लिमिट है तो हम कैसे क्लास बाउंड्री देख सकते हैं? माने जैसे 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 इस टाइप का क्लास है, तो दिस इज ऑब्वियसली क्लास लिमिट. CL माने क्लास लिमिट. आई वांट टू हैव क्लास बाउंड्रीज. सो कैसे करते हैं? ये 10 और 19 को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे. 10 को लिखेंगे 9.5, 19 को लिखेंगे 19.5. बिकॉज इफ यू लुक एट द क्लास लिमिट, 19 के बाद 20 है तो देर इज ए गैप ऑफ 1, तो वो 1 को 0.5 करके एडजस्ट कर दो. माने ये हो जाएगा 19.5 एंड ये हो जाएगा 29.5. दिस विल बी 29.5, दिस विल बी 39.5. And this is 39.5 to 49.5. So, which is very important to us is class boundaries. अगर नहीं है, क्लास लिमिट है, तो वो लोअर एंड को कम कर दो. माने हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? LCL माने लोअर एंड से 0.5 घटा देंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगा. एंड अपर एंड्स में माने अपर क्लास लिमिट में 0.5 जोड़ देंगे तो अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगा. Normally 0.5. It is normally because we used to use gap of 1. 10 to 18 नहीं देख रहे हैं. 10 to 19, 20 to 29. Is it necessary that classes are always same length? Not necessary, but we prefer the classes to be of the same length. Length means the width of the class, the gap, the class length. So how we can get the class length? We can get the class length not by class limit. क्लास लेंथ या क्लास विथ भी बोल सकते हो. विथ भी बोल सकते हो माने क्लास का वो कितना गैप है. तो नॉर्मल स्टूडेंट्स विल बी टेलिंग दैट 10 to 19 में 9 का गैप है. नो, दिस इज नॉट द ट्रू फॉर्मूला. एक्चुअल फॉर्मूला अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री. सो वी कैनॉट and should not see the length from class limit. Look at the class boundary and then tell it is 19.5 minus 9.5. Therefore, the length of the class is 10. Here also 10. So all the classes have the same length as 10 in this example. Don't find the class length by subtracting the class limits, upper limit and lower limit. You find the upper boundary and lower boundary. Now, these are very basic points. Why I have started suddenly this topic today? Because I want statistics इतना important एक सब पोर्शन है तुम्हारा कोर्स का जो पहले स्टार्ट करना चाहिए. तो हम थोड़ा सा जल्दबाजी से वो आज स्टार्ट किए क्योंकि हमको बहुत कुछ बताना है इस टॉपिक में डिस्क्रिप्शन में. तो डिस्क्रिप्शन में फ्रीक्वेंसी, देयर आर 2 types of frequency. Frequency distribution are 2 types. One is normal frequency distribution can be converted to cumulative frequency distribution. Can be converted to, this is frequency distribution माने क्लास का फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट करते हैं. क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. And the frequencies are given as 3, suppose है ना, hypothesis जैसे ऐसी कुछ लिख रहा है. These are the frequencies. Then what does it mean? This 3 means 10 to 20, ये माने below 20, 10 to below 20 इस क्लास में 3 फिगर है. I don't know which are the figure, but there are 3 figures which are the frequency of the class. The next class में 5 फिगर है. So this way we find the class frequencies. Now we have a small point. Instead of class frequency, I can find the less than frequency of the class. माने less than means less than this class, how many are there? 3. Then less than this class will be 3 plus 5, 8. Then less than this class will be 3 plus 8 plus 8, 16. And then less than this class is 20. What is this? This is called cumulative frequency, CF. Once more, what does it mean? CF क्या मतलब क्या है? Cumulative frequency क्या है? वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा.
तो 20 10 से 20 के अंदर 3 है, तो 10 से 20 इस क्लास के से कम 3 केस है, माने लेस देन दिस क्लास वी हैव 3 केसेस फ्रीक्वेंसी। अब लेस देन 30, लेस देन दिस वैल्यू 30 प्रीवियस वैल्यू और ये वैल्यू क्यूम्यूलेट हो जाएगा। सीएफ माने क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल क्यूम्यूलेटिव आइडिया इज लेस देन आइडिया। नॉर्मल मीन्स वो ऊपर से जोड़ते जाएंगे, ये 3 है तो नेक्स्ट है 3 और 5 8, फिर नेक्स्ट है 3 5 8 16, फिर नेक्स्ट है तो ये, तो टोटल अगर देखोगे ये टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग समेशन एफ बोलते, तो वही है 20 लास्ट में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में जो लिखते हैं वो टोटल हो गया। लेकिन उल्टा भी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेट कर सकते हैं, अदर वे मीन्स नीचे से भी देख सकते हैं। मतलब अगर हम बोलेंगे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वैसा भी कर सकते हैं, तो नीचे से काउंट करते हैं। मोर देन 50 कितना है, कोई है नहीं, क्योंकि 50 से ज्यादा तो कुछ है नहीं। 40 टू 50 4 है, 50 से ज्यादा तो कुछ नहीं है, 0। अब इससे ज्यादा 4 है, फिर 30 से ज्यादा कितना है, वो है तुम्हारा 12, और ये 20 से ज्यादा है तुम्हारा 17। तो नीचे से जोड़ रहा है कैसे, ये पहले 0 लिख देंगे। शुरू में क्यों 0 लिख रहा है, क्योंकि 50 से ज्यादा तो कुछ है नहीं इसलिए 0 है, बट 40 से ज्यादा 4 है, 4 लिख दिए, नीचे से जोड़ रहे हैं 4। अब ये 4 इधर लिख दिए, अब ये 4 के साथ ये 8 ऐड करके 12। लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज कम करते हैं। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज रेयरली यूज्ड, वेरी रेयरली। तो नीचे से जोड़ते हैं तो वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन, ऊपर से जोड़ते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। इफ यू वॉच द 2 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये ग्रेजुअली बढ़ता है, अपवर्ड देखो बढ़ रहा है 3 8, क्योंकि ऊपर से जोड़ रहे बढ़ेगा। और ऊपर से जब हम लोग देख रहे हैं इधर से, तो ये घट रहा है, क्योंकि नीचे से जोड़े थे ना, तो ये घट रहा है, तो ये नीचे से बढ़ रहा है, ऊपर से बढ़ रहा है। तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वन इज लेस देन, अनदर इज मोर देन। There are 2 types of, there is a question, how many types of cumulative frequency are there? One is less than cumulative frequency, which means ऊपर से क्यों देखते हैं, ये less than this class how many are there, less than this value how many are there, ऊपर से ऐड कर रहे हैं। less than 40 how many are there, less than 50 how many are there। but when we say more than 50, less than 50 20 है, तो more than 50 तो कुछ है नहीं। लेस देन 40 खाली अपर एंड को देख के ही करते हैं, ये अपर एंड देख के करते हैं, लोअर एंड को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वॉच नहीं करते। 10 टू 20 है तो 20 से कम है, लेस देन है 3, 30 से लेस देन है 8, दोनों ऐड हो गया। 40 से लेस देन है ये 3 5 8 16 हो गया। अब 50 उसका 20 हो गया। अब उल्टा देखेंगे मोर देन, तो 50 से ज्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि 50 तक ही है यहाँ। अब 40 से ज्यादा 4 है, अब 30 से ज्यादा 4 और 8 12 है। बट आई डोंट थिंक वी नीड more than cumulative frequency to calculate, but we need to know how many types of cumulative frequency are there. Actually, if you draw the diagram, you have 2 types of diagrams which we don't need to draw, but we need to know. जैसे ये सब रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये सब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, इधर फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं और इधर क्लास बाउंड्री दिखाते हैं। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू मे हैव डन इन लोअर क्लासेस, ये डायग्राम को बोलते हैं हिस्टोग्राम को। व्हेन इट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी इन द ग्राफ पेपर इज शोन इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, सटा हुआ है, एक के साथ एक सटा हुआ है, इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है, या एरिया डायग्राम भी कोई कोई बोलते हैं। So remember this word, histogram represents the frequency of the class interval। जैसे ये 10 है तो ये 20 है, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस की तरफ ड्रॉ करते हैं। हम लोग को ड्रॉ नहीं करना है, we don't need to draw, but we need to remember how we present frequency in the graph paper। The name of the diagram is called histogram or area diagram। But वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब रिप्रेजेंट करते तो उसको 2 टाइप से ये डायग्राम ग्राफ पेपर में करते। एक नीचे से जाता है वो है लेस देन, देखो बढ़ रहा है ऐसे बढ़ेगा, और एक ऊपर से घटता है कम हो जाता है, वो होता है मोर देन, ये होता है लेस देन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, एक वो बढ़ता है और एक घटता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
डायग्राम, एक नीचे से ग्रेजुअली बढ़ेगा और एक ऊपर से वैल्यू घटेगा। तो ये नाम इसका क्या है? ओजाइव्स। Ogives are two types. One is more than ogives. There are two types of ogives. These are all concepts. तो क्वेश्चन कुछ आ सकता है इसके ऊपर, ऐसा नॉर्मल कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओजाइव्स कैन बी ड्रॉन? टू टाइप्स, वन इज मोर देन ओजाइव, अनदर इज लेस देन ओजाइव। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम नहीं आएगा, आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रुप का है उसमें से दूसरा क्वेश्चन ओजाइव का हिस्टोग्राम का नहीं आएगा। तो क्योंकि वो तो डायग्राम करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, नहीं पूछ सकते। क्या पूछ सकता है? देखो क्वेश्चन देंगे इस टाइप का, 10 से 0 से 5 ये क्लास है। देखो ऐसा क्वेश्चन ये फ्रीक्वेंसी से पूछ सकते हैं, जैसे वो पेजेस और मिसप्रिंट्स के बारे में बोले वैसे 10 to 15, 15 to 20। एक क्वेश्चन है कि ये ऑलवेज क्या इक्वल फ्रीक्वेंसी देंगे? ये देना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट फॉर्मिंग द क्लासेस इक्वल, गैप सेम होना चाहिए। ये जो है दीज आर द फ्रीक्वेंसी, माने केसेस, कितना केसेस है, ये क्लास का फ्रीक्वेंसी है, ऐसे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछे फाइंड हाउ मेनी आर मोर देन 15, माने ये 15 से ज्यादा, माने इसके ऊपर, ये 15 से ज्यादा माने इसके ऊपर, ये 10 से 15, 5 से 10, 0 से 5 ऐसे दिया हुआ है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी केसेस, हाउ मेनी आर मोर देन 15, तो ये दोनों जोड़ना होगा। ये 15 से 20 के अंदर, 15 से 20 के अंदर, और ये 20 से 28 25 के अंदर, तो ये टोटल होगा 15 का हाउ मेनी। ये पहला क्लास 15 से 20 के अंदर 12 और 20 से 25 के अंदर 8, तो 20। एक छोटा सा एक डाउट रह जाता है मन में कि आप बोले मोर देन 15, तो 15 तो यहाँ काउंट हो जाता है, बट ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए मोर देन और मोर देन इक्वल टू 15 एक ही बात होता है। ये याद रखो कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जब मोर देन बोल रहे तो ये जोड़ देंगे। अगर पूछेंगे हाउ मेनी आर लेस देन 10, ये था मोर देन 15। अगर हम पूछेंगे हाउ मेनी आर लेस देन 15, मान लो पूछे हाउ मेनी आर लेस देन 15, मोर देन पूछे तो इधर जोड़ दिए। अब पूछेंगे अगर क्यूमुलेटिव टाइप ही है, हाउ मेनी आर लेस देन 15, तो हमको ये तीन को जोड़ना है 15 तक, माने ये 7, 13 और 19, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 39। तो बेसिकली द पॉइंट इज योर how many cases are there, we count from the frequency distribution। frequency distribution से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो थोड़ा डिफरेंटली तुम लोग को दिया जाएगा। ये तो डायरेक्ट क्लास इंटरवल्स दे दिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप फ्रीक्वेंसी से, और क्वेश्चन उसके ऊपर रख रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, दो क्वेश्चन एक्चुअली, marks below, this is written marks below 10, 20, 30, 40, 50, these are given। marks below ऐसे दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है marks below, and this is number of students। तो number of students below, this is 12, this is 27, 45, 70, 80। Now please watch what I am wanting to give here। ये जो दिखा रहे यहाँ पर marks below 10, 20, 30, 40, 50 and नीचे लिखा हुआ है number of students। Now what is the question? How many students scored? बहुत common question है। Students scored more than 30, so many students make a mistake। what mistake? जब हम लोग ये टेबल देखते हैं तो ये मार्क्स देखते हैं, बिलो वर्ड को देखते नहीं है। ये जो लिखा हुआ है मार्क्स बिलो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स बिलो माने 10 से कम मिला 12 जन को, 20 से कम मिला 27 जन को। ऐसा नहीं है कि 10 मिला 12 जन को,
10 10 12 जन को 10 नहीं मिला, 10 तक जो 10 है स्कोर 10 या 10 से कम है 12 जन, या 20 नहीं है, 27 जन का स्कोर 20 नहीं है, 27 और 27 से कम है 20, 27 और सॉरी 20 और 20 से कम है 27 जन। ये 27 जन स्टूडेंट क्या स्कोर किए 20? नो, वो 27 जन स्टूडेंट्स में 12 जन ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि 20 से कम जो है वो 10 से भी कम हो सकता है। So this is cumulative frequency. If you look at the frequency, these are not frequency. These are not frequency. Please carefully note. These are not frequency. These are cumulative. क्यों? Below माने less. तो ये 10 से कम मिला 12 जन को, 20 से कम मिला 27 जन को। क्वेश्चन क्या है? 30 से ज्यादा कितना जन है? तो बहुत इजी है, देखो 30 से कम कितना जन को मिला? 45। बिलो 30 कितना जन को मिला? बिलो 30 कितना जन का स्कोर है? बिलो 30 है, स्कोर है देयर आर 45 स्टूडेंट्स एंड टोटल स्टूडेंट्स है 80। टोटल स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल स्टूडेंट्स आर 80। व्हाई टोटल स्टूडेंट्स आर 80? हाउ डू यू नो? बिकॉज बिलो 50 देयर आर 80 स्टूडेंट्स, सो तो टोटल स्टूडेंट्स 80 है। हम इसको थोड़ा इलाबोरेट दूसरा वे में भी करेंगे। अभी हमको निकालना है 30 से ज्यादा कितना है। तो 30 से कम मिला 45 स्टूडेंट्स, बिलो है 45 स्टूडेंट्स जो 30 से कम मिला, और टोटल स्टूडेंट्स है 80 क्योंकि 50 से ज्यादा तो कोई है नहीं, तो ये टोटल स्टूडेंट्स 80 जन है। तो हाउ मेनी आर अबव 30? तो अबव 30 कितना जन को मिला? अबव 30 मिला 80 जो टोटल स्टूडेंट्स है उससे 45 माइनस कर दो तो हो जाएगा 35। तो योर आंसर इज 35 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 30। हाउ डू यू नो मोर देन 30? बिकॉज एज पर दिस टेबल बिलो 30 देयर आर 45 स्टूडेंट्स, बिलो 50 देयर आर 80 स्टूडेंट्स, उससे ज्यादा तो कोई है नहीं। तो 30 से ज्यादा ऑब्वियसली 50 से कम मिलेगा, तो 45 80 से माइनस कर देंगे। इसको अगर हम तुम लोग को दूसरा पॉइंट से दिखाएंगे, क्लास इंटरवल करके दिखाएंगे, तो क्लास इंटरवल था नहीं। दिस इज नॉट क्लास इंटरवल, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, बिकॉज बिलो 10 बिलो 20 करके जो दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हमको निकालना है लेस देन क्यूमुलेटिव के हिसाब से नहीं, मोर देन, उससे ज्यादा कितना जो उनको मिला। तो अगर हम इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी में दिखा देंगे टू एक्सप्लेन मोर क्लियरली, अगर इसको हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी में दिखाएंगे तो ऐसे कैसे दिखाते? बिलो 10 माने 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते ये डेटा को। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो बिलो 10 माने 0 से 10 है 12 जन। हम पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल करके इसको दिखाएंगे तो और क्लियर हो सकता है। तो 10 to 20 कितना जन है? 27 जन है 20 से कम, उसमें 12 जन ऑलरेडी 10 से कम लिख दिए, तो 27 से 12 हटा दो 15 होगा। क्यों 15 होगा? क्योंकि 10 से कम 12 जन है तो 0 से 10 12 है। 10 से 20 होगा दिस टू डिफरेंस। अब 20 से 30, 20 से 30 माने 27 और 45 का डिफरेंस 18, फिर 30 से 40 इसका डिफरेंस 25, और 30 से 40 से 50 10। और एक बार फिर से एक बार try to understand what I have represented here now. In this way, when I am writing the table information, then we are getting one thing very straight, कि this data are representing the cumulative type. क्योंकि तुम अब अगर तुम देखोगे ये सच में क्यूमुलेटिव है, देखो ये तो 12 है, ये जोड़ोगे तो 27 है, देखो ये से मिल रहा है, ये जोड़ोगे तो 45 है, देखो ये मिल रहा है, फिर ये जोड़ोगे तो 70 है, देखो ये मिल रहा है, और ये जोड़ेंगे तो 80 है। तो यही तो यहाँ दिया हुआ है। अगर हम क्यूमुलेटिव करके लिखते तो ऐसे ही आता, हमको उल्टा दिया हुआ है, ये क्यूमुलेटिव को दे दिए। हम इसको अगर फ्रीक्वेंसी ग्रुप में लिखेंगे, क्लास इंटरवल में लिखेंगे, तो माइनस करके निकाल लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी स्कोर्ड मोर देन 30, तो ये जो पोर्शन है इसका फ्रीक्वेंसी 25 प्लस 10 35 होगा, बट इट इज टेकिंग लॉन्ग टाइम। हमको पहले ऐसे दिखा के फिर माइनस करके देखना है, सो इट इज टेकिंग लॉन्ग टाइम, डोंट डू दैट। 80 से 45 माइनस कर दो, यू विल गेट द स्ट्रेट आंसर। दिस आइडिया इज
your frequency distribution presented in grouped manner. So if you present in the grouped manner, you will get the answer clearly. So इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस उन लोग पूछते रहते हैं. तो इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है क्या, स्टैटिस्टिक्स में जो फिगर्स डेटा है उसको कैसे प्रेजेंट करते, तो बहुत सारा मेथड है. वो तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग तरीका है. तो हम उस थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताए और उसके ऊपर आइडियाज डिस्कस किए. नेक्स्ट एक आइडिया तुम लोग के साथ शेयर कर लेंगे, वो है जो डायग्राम पिक्चर से माने ग्राफ डायग्रामेटिक मेथड से, तो वो लाइन डायग्राम से कर सकते हैं. लाइन डायग्राम माने लाइन प्रेजेंट करते, जैसे हम लोग देखते हैं कि बारिश कितना हो रहा है, तो ये एक्स एक्सिस में टाइम और ये वाई एक्सिस में रेनफॉल. तो देखते हैं 2010 में कितना बारिश हुआ था, फिर 2021 में 2002 में कितना हुआ, 2003 में कितना हुआ, ऐसे करके लाइन से जोड़ते. तो ये लाइन डायग्राम हम लोग प्रेजेंट करते टू शो द चेंजेस ऑफ डेटा. दिस इज फर्स्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. सेकेंड बार डायग्राम. बार डायग्राम इज नॉट हिस्टोग्राम, दिस इज द डेटा को हम लोग ऐसे दिखाते, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फिर इसे रेक्टेंगल अलग अलग सटा हुआ नहीं है. जैसे 2010 में इतना प्रोडक्शन हुआ था, 2010 में, 2011 में इतना प्रोडक्शन हुआ, 2012 में इतना हुआ, ये बार डायग्राम है. वी डोंट नीड द कॉन्सेप्ट टोटली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट कि कितना मेथड है. और एक मेथड है वो है तुम लोग का ये क्यूब डायग्राम. और ये क्यूब डायग्राम माने ये क्यूब डायग्राम मीन्स, ये क्यूब डायग्राम क्या है, क्यूबिक डायग्राम. ये वन डायमेंशन माने एक खाली लाइन होता है, ये टू डायमेंशन लाइन लेंथ एंड ब्रेथ होता है. और ये लेंथ ब्रेथ एंड, जैसे ये डायग्राम 3D करके करते हैं, ऐसे करके ये ऐसे डायग्राम आजकल करते हैं, ये ऐसे करके हिस्टोग्राम नहीं दिखा, बार डायग्राम नहीं दिखाते, ऐसे करके ये क्यूब डायग्राम होता है. ये 3D करके, ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन. बट बार डायग्राम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट या पाई डायग्राम. जब कंपेयर करते पाई चार्ट और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. किसके ऊपर, ये बार डायग्राम का एक स्पेशल केस है पाई डायग्राम, जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं. तो क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत पूछते हैं. टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री को हम लोग ब्रेक करते हैं प्रोपोर्शनली. 360 डिग्री माने टोटल सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल मींस टोटल जो सेंटर में एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा. अब हम लोग उस एंगल को प्रोपोर्शनली डिवाइड करके पाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, बहुत क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर. कैसे पूछा है देखो, 4 sections in a college, A, B, C, D are the sections. A number of students studying in the 4 sections are, they have given the sections में कितना स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो दे दिए. ये तुम्हारा है 15 जन, इसमें है 12 जन, इसमें है 23 जन और इसमें 10 जन. अब पूछ रहा है कि फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्शंस लोएस्ट स्टूडेंट्स, माने फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द लोएस्ट क्राउडेड स्टूडेंट, लीस्ट क्राउडेड स्टूडेंट. जिस क्लास में लीस्ट क्राउड है, लीस्ट क्राउडेड सेक्शन, क्राउडेड सेक्शन, जिस क्लास में सेंट्रल एंगल. फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ लीस्ट क्राउडेड सेक्शन. दीज आर द सेक्शन ABCD 4 सेक्शन. तो कौन सा सेक्शन में सबसे कम ये है स्टूडेंट्स है, उसका एंगल कैसे तुम सेंटर में माने पाई डायग्राम ऑब्वियसली. तो कैसे करोगे, पहले टोटल पर, टोटल कितना है, टोटल जोड़ेंगे तो ये आ रहा है तुम्हारा 72. टोटल आ रहा है तुम्हारा, सॉरी नॉट 72, ये आ रहा है तुम्हारा 60. यस 60 आ रहा है टोटल. 60 टोटल स्टूडेंट्स है 4 सेक्शन मिला के. अब हम कैसे, सबसे लोएस्ट है डी सेक्शन. तो डी सेक्शन का सेंटर एंगल कैसे है, सेंट्रल में एंगल कैसे निकलेगा,
सेंट्रल एंगल फॉर डी क्यों निकालेंगे, क्योंकि दैट इज द लीस्ट। तो उसका क्राउड है 10 जन, टोटल है 60 जन, तो 360 डिग्री में क्या होगा। फिर से एक बार, 60 जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं 360 डिग्री, क्यों, टोटल जो एंगल है वो 360 है। तो हम लोग याद रखेंगे, फ्रैक्शन निकाल लो। कैसे एंगल निकालोगे, पहले फ्रैक्शन निकाल लो, फिर 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60 डिग्री एंगल होगा। तो फिर से एक बार, डी का सेंटर एंगल पूछा है तो हम लोग 10/60 किए, माने पहले फ्रैक्शन कितना है डी में स्टूडेंट्स का, 10/60, और टोटल एंगल 360। अगर हम पूछेंगे नहीं, डिफरेंस ऑफ एंगल, फाइंड डिफरेंस ऑफ एंगल, ये क्वेश्चन पूछे, फाइंड डिफरेंस ऑफ सेंट्रल एंगल, डिफरेंस ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर बी एंड सी, बी एंड सी का सेंट्रल एंगल का डिफरेंस क्या होगा। तो हम तुम लोग को एक सजेशन देंगे, डोंट फाइंड द एंगल फर्स्ट एंड देन माइनस करोगे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ सेंट्रल एंगल्स फॉर बी एंड सी। आई सजेस्ट यू, पहले बी एंड सी का डिफरेंस क्या है, बी एंड सी का डिफरेंस 11 है, 11, बी एंड सी का डिफरेंस है 11, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 है, टोटल कितना है 60, तो 11/60 इंटू 360, तो 66 डिग्री, 66 डिग्री इज द डिफरेंस ऑफ एंगल। डोंट फाइंड द डिफरेंस, एंगल पहले निकालोगे अलग अलग, फिर माइनस करने का जरूरत नहीं। 12 और 23 का डिफरेंस है 11, 11 को 60 टोटल से डिवाइड करके इंटू 360 डिग्री कर दो। सो दिस इज योर फर्स्ट आइडिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का बेसिक आइडिया ये है। एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर में, वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मेजरमेंट्स है जो बहुत यूजफुल है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आया था इसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, very important question which came this year. What is frequency density? How to calculate frequency density? Frequency density is what? Frequency density is class frequency divided by class length. Class frequency divided by class length into your no, not into, just this one. Class frequency by class length is called frequency density. What is the requirement of frequency density? This is applied when you need to draw. This is applied when you need to draw the unequal frequency distribution. तो क्वेश्चन दे दिए, क्लास दे दिए, the classes are given that 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, and the frequencies are given as like 3, 5, 6, 4. The question is find frequency density. The question is find frequency density of the class 15 to 19. So how to find the, इस बार आया था, इस बार ये 2021 दिसंबर में ऐसा एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का। So how to answer this question? So now you look, what is the length of this class first? 15 to 19 का क्लास लेंथ क्या है, पहले क्लास लेंथ देखो, 15 to 19 का लेंथ क्या है। क्लास लेंथ ऑफ 15 to 19 is, don't say 4 because it should be 19.5 minus 14.5 because this is not class boundary. We have to convert it to class limit to class boundary and then subtract, and it is coming to be 5. Now you see what is the class frequency. Class frequency of this class is equal to 5. So what is the frequency density? Frequency density is 5/5, that is your 1. So the answer is frequency density of this class will be 1. So this is the kind of question which we can find in description of data. Now first chapter statistics ka description of data which we can deal. Now come to the most important chapter of our syllabus, that is central tendency. It is most important. Central tendency deals with
the measurement of the center of the statistical data. This is most important discussion. How to find out central tendency this way. Central tendency कैसे measure होगा? What is the center? First question. Central tendency कैसे measurement होगा? Measures of central tendency से पहले what do you mean by center of statistical data? What is the center? How do you know the center of statistical data? Now, center क्या है? If you ask me, then obviously we'll answer that जो बीच में है वो center होता है. But this is not the true sense of the term center. We have different concepts of center. Like, if I ask you center of any geographical diagram, then बीच में आओगे. तो 3 type of center हम लोग देखते हैं. First is average, second is median, and third is mode. Most of you know this discussion, mean median mode. You know these ideas कि mean median mode हम लोग बचपन से बहुत किए. Exactly. But the question is, when they ask the question, they ask very in-depth knowledge. In-depth knowledge means, like, first point, how many types of averages there are? How many types of averages? What is average? Average is to get the values divided in equal manner in total sense. We have 3 types of average. First average is called arithmetical average, arithmetic mean, AM. Second, arithmetic mean is AM. Then second type is geometric mean, and third type is harmonic mean. So we have 3 types of average. The question is which one we will apply where? कौन सा average कब यूज करेंगे? कौन सा average कब यूज करेंगे? तो ये पहला क्वेश्चन है. तो पहले ये क्वेश्चन है कि कौन सा एवरेज कब यूज करना है. तो ये देखने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट होता है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज योर ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे. 3 कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा. सिंपल डेटा रहेगा, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उसको x बार लिखते हैं जो समेशन x बाई n. सो x बार इज टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा. दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर द अरिथमेटिक मीन विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी. बट इफ यू हैव सम फ्रीक्वेंसीज देन वी यूज summation fx by summation f. This is the second type, summation fx by summation f. This is second type. This is the second type means when we have some frequencies. Now the point is next one, just a minute. Geometric mean. Geometric mean is obviously very important. Some other cases, product, all the numbers are multiplied, product of the all data to the power 1 by n. This is the geometric mean. Geometric mean is multiply all data. All data are there. All data are given. Multiply all data. Take the power 1 by n. This is a little bit calculation we need. The third one is harmonic mean. I'll discuss in detail. Third one is harmonic mean. That is n by reciprocal of all the values added. So there are 3 types of average. First average is arithmetic mean with frequency rahega, to fx by f. Why not the other 2 with frequency? These are not usually don't use the frequencies. This is the first kind. Now second point. Second type is geometric mean. So geometric mean is your point how to calculate geometric mean. Now coming to the concept of
तीनों को अच्छे से देखना होगा क्योंकि तीनों में कुछ तो पॉइंट है, एम जीएम एचएम में कुछ तो डिफरेंस है. बिफोर दैट let us take the median. Median is middlemost value. I'll discuss basic knowledge of these three. Middlemost value. It is also called the positional average. Positional average. Positional average. Which is provisional average, that is to be seen. Which is positional. How to find out position? Position कैसे निकलेगा? And third is mode is most frequent value. So I want to discuss one by one. तीनों को एक साथ एक दिन में खत्म नहीं करेंगे. Most frequent value. Three types of measurements we have. First type is this is called average, that is arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. Second type is median, which is middlemost value, and third type is mode. now चलो एक एक करके डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट द बेसिक आइडिया ऑफ मोड. मोड मीन्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, द वैल्यू which occurs maximum number of time, that is most frequent value, the value which is occurring maximum number of time. So it's very easy. Find mode. ऐसे बोला, हम मोड से स्टार्ट किए. फाइंड मोड माने सेंट्रल टेंडेंसी का पहला मेजरमेंट हम स्टार्ट किए. फाइंड मोड ऑफ 12, 18, 15, 18, 20, 23, 20, 18, 12, 18. So which is the most occurring value? Most occurring value is, most occurrence किसका है? 18 का है. ऑकरेंस है 18 का, तो मोड इज 18. तो सिंपल है. मोड तो बहुत जल्दी निकल जाएगा. ट्रू, मोड तो जल्दी निकल जाएगा, बट मोड क्यों करते? व्हाई वी अप्लाई मोड? द प्रॉब्लम इज व्हाई वी अप्लाई मोड. मोड क्यों करते? वेयर यू अप्लाई मोड? सो दैट इज द पॉइंट. अगर देखना है कोई दुकान में कितना साइज है, तो कौन सा साइज सबसे ज्यादा डिमांड होता है, ये देख के हम लोग को मोड मेजरमेंट करना. मोड इज फॉर द मेजरमेंट ऑफ मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू. दैट इज द फर्स्ट थिंग. मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू मोड है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है. व्हाट प्रॉब्लम? देखो प्रॉब्लम क्या है. फाइंड मोड ऑफ 2, 3, 3, 5, 3, 4, 5, 5, 4. Now, problem is there are two modes. One is 5, another is 3. So, two modes are possible. You can have two modes. One is 3, another is 5. This is called bimodal distribution. Bimodal. What is bimodal? There are two modes. We have two modes. We have two modes. Two modes माने दो मोड हो सकता है. हाँ, एक डिस्ट्रीब्यूशन में दो मोड हो सकता है. ऐसा क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि कितना मोड है. 3 मोड भी हो सकता है. This is the first point, that mode can be more than one. Another question is there. We have problem in mode. There are problems in mode which we do not find in other measurements of central tendency. The other ones, most of the students think that stats तो सबसे easy है, but the questions we get in the exam is very conceptual. Find mode of 12, 13, 14, 18, 20. How can we find out mode? No mode. So, because all are occurring same number of times, no mode exists. Therefore, there is a question, which measurement of central tendency cannot be found? So, which measurement of central tendency cannot be found? Mode is sometime undefined. So, mode may be more than once, two cases. So, mode may be more than once, mode may be more than one, mode may be more than one value, or may be undefined. So the problem
in measurement of mode is not unique answer. Sometime mode is undefined, sometime mode is only one value mode का नहीं है, more than one value is there. So this is the point in mode. We'll discuss more questions from the topic mode. Now come to a second measurement, that is median. I'm going from the back side. Today I'm just giving the basic idea. Median is middlemost value. So first you arrange ascending order or descending order. Arrange is very important. You must arrange the data. Arrange in ascending or descending manner. Arrange in ascending or descending manner. तो पहले ascending या descending में arrangement कर लो. Now after arrangement you find out the median as n plus 1 by 2th value, the value which is at the middle. So that will be n plus 1 by 2. Very important. Ascending or descending order. I prefer ascending order. So if I say find median, so first thing you will do, like questions 12, 10, 18, 15, 14 and obvious 8. Now we will ascending order में पहले लिखेंगे. First ascending order में लिखो. So lower to higher, the lowest value is 8, then 10, then 12, then 15, 14, then 15. So you have total, you have 10, 8 lowest है, फिर 10 है, फिर 12 है, then 18 है last. So how many values? N is equal to 6. Now there is a problem. 6 values का median कैसे होगा? 6 plus 1 by 2. 6 plus 1 by 2 is 7. Median will be 6 plus 1 by 2. Ith value, that is 6 plus 1 is 7, by 2 is 3.5th value. So which is the 3.5th value? Third value and fourth value का बीच में. 3.5th value तो है नहीं ना, तो 3.5 represents third and fourth के middle में. That means third value plus fourth value by 2. Third value plus fourth value by 2. So which is the third value? 12, and which is the fourth value? That is 14. So your answer will be 12 plus 14 by 2. This is your answer to median. Median is very simple. You have to find out the middlemost value. Now the main problem of the mean median mode में आज हम basic ideas discuss कर रहे हैं. Mean median mode का main ideas, and then I am giving this concept how to find out. Next day I will go for the detail. Now arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. So I am finding all the three together. Find AM, GM and HM of 2, 4, 8. पहले arithmetic mean. Arithmetic mean is add the values 2 plus 4 plus 8 divided by 3, which is 14 by 3, 4.67. Now what is geometric mean? Product. Multiply करो, product माने ये तीनों को into कर दो. 2 into 4 into 8 whole to the power 1/3. Because we have three values, we will multiply तीनों को into करके. Geometric means multiply. तो 64 के ऊपर 1/3, तो 64 का वैल्यू है 4 के ऊपर 3, उसके ऊपर 1/3, तो आंसर इज 4. नाउ द लास्ट इज हार्मोनिक मीन, दैट विल बी n माने 3 वैल्यू है और सबका रेसिप्रोकल. यू लुक एट द फॉर्मूला, प्रोडक्ट को 1 by n माने 3 वैल्यूज के लिए 1/3. अब हार्मोनिक मीन के लिए सबका उल्टा 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8. ये तीनों का रेसिप्रोकल वैल्यूज ऐड करेंगे और वो ऊपर में n रखेंगे. n means total number as we have. So the answer is 3 by, now you take the LCM, it is 8, this is 4 plus 2 plus 1, so 24 by 7, that is 3.4. So you have your answer to AM, GM and HM. There is a very small question, which is bigger? Biggest कौन है? Arithmetic mean is always the biggest. Arithmetic mean is always the biggest value. Arithmetic mean सबसे ज्यादा होता है. फिर देखो geometric mean है, फिर HM है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है,
फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ है, फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज है, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। तो सबसे ज्यादा कौन है? ऑलवेज AM, उसके बाद GM, उसके बाद HM। दिस इज फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर 2, 4, 8 का AM, GM, HM निकाले। अगर सब 2 होता, 2, 2, 2 का AM, GM, HM तो इक्वल हो जाता। तो फॉर इक्वल वैल्यूज, for equal values AM, GM, HMs are equal. AM is equal to GM is equal to HM. So if a question comes that for distinct values AM, GM, HM का relation क्या है, ऐसे greater है, AM greater than GM greater than HM. For equal values AM equal to GM, माने सब values equal है, then it is equal, all are equal. Now equal means AM is equal to GM is equal to HM. Now come to a very good one point, that is दो वैल्यूज के लिए AM, GM, HM कैसे निकलेगा? वेरी गुड स्मॉल थिंग। फॉर टू वैल्यूज, जस्ट दो वैल्यू है, दो वैल्यूज है तो A एंड B दो वैल्यूज है, दो वैल्यू है, एक है A एक है B, तो अरिथमेटिक मीन विल बी A प्लस B बाई 2, वेरी सिंपल। ज्योमेट्रिक मीन विल बी रूट ओवर AB एंड हार्मोनिक मीन विल बी 2 बाई 1 बाई A प्लस 1 बाई B लिखते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके 2AB बाई A प्लस B लिख सकते हैं। सो दिस पॉइंट, दिस थ्री फॉर्मूलाज वी कैन रिमेंबर एंड यूज, लाइक फाइंड AM, GM एंड HM ऑफ टू वैल्यूज के लिए। देखो 2 and 4, तो हाउ टू फाइंड? फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, 2 plus 4 by 2 is 3. Then geometric mean 2 into 4 का रूट। क्यों रूट? टू दी पावर हाफ लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टू दी पावर हाफ लिख के करोगे, ये टू दी पावर हाफ लिखना चाहिए ना फॉर्मूला में, दोनों को इंटू करके हाफ, तो वो रूट होता है। तो ये रूट 8, रूट 8 मीन्स you can calculate root 8 very straight, easily you can calculate। स्मॉल काम है दो वैल्यूज के लिए, 8 का रूट लिखने से 2.82 जो है। एंड थर्ड वन इज हियर योर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के लिए हम बोलेंगे, ये एक बहुत इजी फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन के लिए। दोनों को इंटू करो, किसको? ये दोनों को, ये दोनों को इंटू करो, 8 इंटू डबल कर दो, तो ये 16 बाई 6। क्यों? 2AB माने 2 इंटू 2 इंटू 4, 2AB माने दो वैल्यू को जो देख रहे हो उसको इंटू करो, तो 8, 8 को डबल कर दो और नीचे दोनों को जोड़ दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पॉइंट, ये 16 बाई 6 कर देंगे तो हम लोग का ये आंसर आ जाएगा 2.67। तो तुम बोलोगे इससे क्या हुआ? इससे तो कुछ फायदा नहीं होगा। होगा, एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। क्या क्या था फिर से एक बार? अरिथमेटिक मीन क्या था? 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन आया था 3। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 4 I have found to be, we have found to be 3। तो ये अरिथमेटिक मीन था 3। ज्योमेट्रिक मीन इज योर रूट 8 एंड हार्मोनिक मीन इज 16 by 3 which is 8 by 3। अब एक बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं। For दो values, this is true for only two values. This is true for this result what I am now going to write. This result what I am now going to write for two values. For two values, AM into HM. This is only for two values is GM square. For two values, AM into HM is equal to GM square, which is very important to note. दो वैल्यू के लिए एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इंटू करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एम इंटू HM। एरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस आंसर इज ऑलवेज वी रिक्वायर फॉर द सेक ऑफ टू वैल्यूज। तो ऐसे दे दिए, इस बार आया था शायद इस टाइप का एक क्वेश्चन। फॉर टू वैल्यूज, दो वैल्यू दिया हुआ है, एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 4 and geometric mean is equal to 4, I'm sorry,
5.2, एक मिनट, ये था एक मिनट बता रहे 6.5 और ज्योमेट्रिक मीन है 6. फाइंड हार्मोनिक मीन. यस, फॉर 2 वैल्यूज. ये क्वेश्चन है, वैल्यू नहीं दिए, वैल्यू इज नॉट गिवन बट दे हैव गिवन द क्वेश्चन. 2 वैल्यू का अरिथमेटिक मीन दे दिए 6.5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन एज 6. फाइंड हार्मोनिक मीन. हाउ टू फाइंड आउट दिस? So we have a formula AM into HM is equal to GM square. Now AM we know 6.5, HM we don't know, but GM we know, so we can give the answer AM 6.5 into harmonic mean is equal to geometric mean square. Therefore harmonic mean will be 36 by 6.5. Therefore that is 36 divided by 6.5 and the answer will be 5.53. So this is the idea which we need to know. So आज हम तुम लोग को ये बताने का कोशिश किए statistical discussion में, when we discuss statistical questions, we normally and always see the idea of this one values. When we see the values in this way, therefore what is the value? AM, GM, HM, 3 type of average है. And then what is the concept of this center, median and mode भी होता है. Median and mode कैसे calculate करते हैं? That we need to see idea of median is your middlemost value and mode is most frequent, most occurring value. So these 3 types we have. Now I think we have discussed statistics on this way. Now come to the last class paper. एक बार जल्दी आओ, हम एक बार क्विक ब्रीफ डिस्कशन कर देंगे लास्ट डे का पेपर में जो जो दिए थे. लास्ट पेपर का क्वेश्चन एक बार देख लेते. वो था लॉग का. एक बार क्विक, हम तो आंसर दे दिए बट एक बार क्विक ब्रीफ आइडिया फॉर द लास्ट डेज पेपर. लास्ट डे जो पेपर दिए थे उसका एक बार डिस्कशन कर देते, क्योंकि हम आज स्टैट स्टार्ट किए बट लास्ट डे का पेपर में क्या क्या था. फर्स्ट क्वेश्चन हम दिए थे 1, उसमें वो था log 10 125 प्लस log 8. तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे ये दोनों ऐड करने से इनटू होता है. लास्ट डे का पेपर अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों इनटू हो जाएगा. तो बेस में 10 है तो ये 10 रहेगा. हम लॉग में लास्ट में क्यों आए? क्योंकि पहले स्टैट्स का थोड़ा डिस्कशन कर दिए. ये 1000 हो गया. एक बार ये 1000 लिख देते, फिर 1000 माने 10 को 3 बार लिखते हैं ना, तो 10 पावर 3 सामने आ जाएगा. तो 3 log 10, तो आंसर विल बी 3. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 है. ऑप्शंस हम दे दिए, अब हम डिस्कशन कर दे रहे हैं. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इफ यू लुक, आराम से देखो. 2 नंबर क्वेश्चन इज log 80 माइनस log 5 माइनस 4 log. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. तो ये दोनों माइनस है, तो एक काम करते, ये log 80 अलग रखो, ये दोनों एक साथ रखेंगे तो ब्रैकेट लेने से ये log 5 प्लस 4 log 2. तो अब देखो आराम से, ये जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये 2 to the power 4 है, तो ये log 80 है और ये log 5 प्लस, आराम से देखो 4 4 बार 2 है तो 16 हो जाता है. 2 into 2 4 into 2 8, 8 into 2 16. अब ये दोनों जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमको दोनों माइनस दिख रहा है, तो ये माइनस ले लिए तो ये प्लस हो गया, तो ये ऐड हो जाएगा. तो ये 16 और 5 इंटू हो जाएगा तो वो 80 है. तो ये भी log 80 है, ये भी log 80 है, तो आंसर 0 हो जाएगा. दोनों ही 80 है. log 80 माइनस log 80, तो दोनों काट के क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर 0 आएगा. अब चलो 3 नंबर में. थोड़ा देख देख के लॉग करना पड़ेगा, थोड़ा देख देख के. ऐसे दिक्कत तो हो सकता है, जैसे जिसका मैथ्स नहीं था उसमें, उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, बट आई डोंट थिंक कि एकदम कर नहीं पाएंगे. थोड़ा देख देख के करेंगे तो हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. 3 नंबर क्वेश्चन में ये देख रहा है कि ये हाफ log 25 प्लस माइनस 2 log 3
प्लस log 18। तो ये जो हाफ है ये 5 स्क्वायर है। हाफ माने क्या, ये 5 स्क्वायर है, तो इसको ऊपर दे दो तो 25 का रूट हो जाएगा। 25 माने 5 स्क्वायर, इसके ऊपर हाफ लेंगे क्योंकि ये सामने है। अब ये 2 को ऊपर दे दो तो ये 3 स्क्वायर, और ये log 8 है। तो ये हो गया, यहाँ पर 8 है तो ये 8 है, 18 है, नॉट 8, 18। तो 18 और वो हो गया 5। तो आप देखो ये है 5 का स्क्वायर और ये काट गया, ये log 5 और ये ऐड करोगे। पहले बॉडमास रूल याद है हम लोग का, बचपन में किए थे। बॉडमास में पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन तो बाद में करते, तो पहले ये दोनों ऐड कर देंगे तो इनटू हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड करेंगे, बॉडमास में पहले ऐड, तो ये दोनों ऐड करेंगे, ये 18 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 5 और 18 इनटू होगा, माइनस log 9। तो log 90 माइनस log 9, तो log 90 माइनस log 9 माने डिवाइड होगा। माइनस होने से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये हो गया log 10, therefore log 10 is your answer is 1। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1 आएगा। अब चलो देखो 4 नंबर में, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इफ यू वॉच, 4 नंबर में वो हाफ log 64 है। आराम से देखो, आहिस्ता आहिस्ता, 64 माने 8 स्क्वायर और ये 3 log 5। तो ये हाफ ऊपर दे दो तो log 64 के ऊपर हाफ है। थोड़ा देख के, हाफ है तो 64 का हाफ तो रूट हो जाएगा, और ये 3 जो है ऊपर दे दो तो ये हो जाएगा log 8 और ये होगा log 125। तो 8 और 125 जब ऐड करते, log में जब ऐड करते तो इंटू होता है, तो इंटू करेंगे तो log 1000 होगा। 1000 माने 10 को 3 बार लिखना है, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो log 10 3 बार, log 10 तो वो सामने आ जाएगा 3, तो 3 log 10, log 10 का वैल्यू 1 है, तो आंसर इज 3। दिस इज योर आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू 5। 4 नंबर में ऐसे कैलकुलेट किए। अब आहिस्ता आहिस्ता 5 की तरफ देखो। 5 नंबर में क्या बोले, 5 नंबर में दोनों को ऐड करना है। हाफ log 10, आराम से हाफ log 4, ये हाफ ऊपर जाएगा क्योंकि पावर जो है सामने आएगा तो वो ऊपर ले लेंगे, तो ये 1/3 log 125, तो ये ऊपर ले लो, तो log 4 के ऊपर हाफ और log 125 के ऊपर 1/3। लेकिन इसके ऊपर पावर है, स्क्वायर है, नो इशू, पहले ये निकाल लेते हैं। ये log 2 होगा और ये log 5 होगा, तो log 2 प्लस log 5 तो log 10 है, क्योंकि 2 इंटू 5, तो log 10 का वैल्यू 1 है, तो log 10 1 है, ये log 10 है ना, 5 और 2 इंटू करने से log 10, तो log 10 का वैल्यू 1 है, उसका होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का वैल्यू, ये जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर होगा तुम्हारा 1। सो दिस इज योर आंसर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये था 5। अब आ जाओ 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या बोल रहे हैं, अंदर से देखेंगे एकदम। 6 7 8 ये सब क्वेश्चन एकदम अंदर से। 6 नंबर अंदर में देखो, ये है log 2, फिर है log के अंदर √2, फिर है log, आराम से यहाँ से थोड़ा केयरफुली 81 से स्टार्ट करोगे एकदम अंदर से। तो 81 क्या है, 81 है तुम्हारा, ये 2 है, ये √2 है। अब 81 क्या है, 3, यहाँ पर 3 4 बार, क्योंकि 81 माने 3 को 4 बार लिखेंगे, तो चाहिए 3 को ही लिखेंगे। क्यों, 81 तो 9 स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ये बेस में नीचे 3 देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 देख रहे हैं, तो 81 को 3 के हिसाब से देखो तो 4 सामने आ जाएगा। एकदम प्रैक्टिस करके रखेंगे तो ये √2 है, अब ये 4 सामने आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा log 3 टू दी बेस 3, तो ये तो 1 है, तो ये log 2 log √2, अब 4 रह गया और ये 1 है। कौन 1 है, 3 टू दी बेस 3। अब ये सब क्वेश्चन एक जैसे करना होगा, थोड़ा सा देख देख के, जिसका मैथ्स थोड़ा कम किया हुआ है
प्रैक्टिस करना होगा। 4 क्या है? 4 माने 2 स्क्वायर, बट ये तो √2 है। 4 माने 2 स्क्वायर, बट ये नीचे तो √2 है, तो 4 माने √2 का कितना बार होगा? 4 बार होगा। क्यों? 4 को हम लोग 2 के हिसाब से देखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 है, तो √2 में 4 बार होगा। √2 इंटू √2, 2 इंटू √2 इंटू √2, तो 4 बार √2 होगा। 2 2 4 होता है, तो 4 बार है तो 4 सामने आ जाएगा। तो log 2 4 सामने आ गया, √2 ये √2, तो ये 1 है, तो ये हो गया 1। तो log में बेस 2 अंदर में 4, तो log 4 माने 2 स्क्वायर, सो आंसर 2 होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 है। तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, 6, 7, 8, all the questions of the same type. Not only that, you have this question again 14, 15, all these questions of the same type. अंदर से जैसे 6 नंबर क्वेश्चन बताए, 7 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। 7 नंबर इज सिमिलर, एकदम सिमिलर। 7 नंबर भी 25 को देखना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन 25, तो अंदर में देखो 2 2 √5 25, 25 माने 5 स्क्वायर 25 होता है, लेकिन √5 है, तो √5 जब है तो हम लोग √5 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बार, तो ये 4 सामने आ जाएगा। √2, फिर ये 2 और ये 4 आ गया, तो ये 1 है, तो ये हो गया तुम्हारा log 4। ये अंदर से देखना होगा, एकदम अंदर से, तो ये log √2, ये log 2 और ये 4 रह गया, ये 1 है। अब 4 माने 2 स्क्वायर, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, तो log 2 और ये 2 स्क्वायर है, तो ये 2 सामने आ जाएगा। ये अंदर से ब्रेक ब्रेक करके लिखना पड़ता है, तो ये हो गया तुम्हारा 1। अब लिखना पड़ेगा √2, 2 को कितना बार देखते हैं? √2 2, तो √2 2 माने √2 स्क्वायर, √2 ये √2 स्क्वायर करने से 2 होता है, तो आंसर 2 होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन नंबर ये जो है इसका आंसर थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ था क्वेश्चन, ये आंसर हाँ 2 है, 7 नंबर क्वेश्चन 2 है। तो ऐसे ही 8 नंबर भी ट्राई कर दो, हमें आंसर तो दे दिए, अगर नहीं होगा तो मेरे को एक बार लिख के बोलो। 8 14 15 इसका आंसर हम दे दिए, तुम लोग एक बार ट्राई करके, जिसका नहीं होगा मेरे को बता देना। अब चलो 9 नंबर क्वेश्चन इंटू कर दो सबको। 9 नंबर क्वेश्चन में प्लस है, तो प्लस साइन में सब इंटू हो जाता है, यू जस्ट मल्टीप्लाई। log 18/15 इंटू 8/12 इंटू 25/10, तो सब कुछ काट जाएगा, देखो सब काट जाएगा। ये 18 कटेगा 6 से, 3 ये कटेगा 2 से, अब ये 15 से 3 काट के 5, ये 5 कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 2, तो 2 2 ये काट के, तो log 2 बचा हुआ, तो आंसर होगा log 2। तो 9 नंबर का आंसर बी है। 9 नंबर में log कैसे किए? सबको ऐड है, इंटू कर दो, दिस इज 9। अब 10 नंबर, 9 नंबर में सबको ऐड करने से इंटू हो जाता है, अब 10 में भी इंटू होगा, सब इंटू हो जाएगा। a²/√bc सब इंटू हो जाएगा। b² c² c²/√ab, तो ऊपर में a² b² c², इन द न्यूमरेटर इट इज a² b² c², इन द डिनोमिनेटर √ओवर a b c, लेकिन स्क्वायर करके देखो, √bc √ac तो सबका स्क्वायर है, तो नीचे का रूट हट जाएगा, तो log abc ऊपर है, नीचे रूट हट जाएगा तो log abc है, तो ऊपर में स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर नहीं है, तो काट के log abc बचेगा। और एक बार ये a² b² c², नीचे रूट है, लेकिन √a² b² c², क्योंकि b 2 बार मल्टीप्लाई हुआ b², c 2 बार मल्टीप्लाई हुआ c² और a मल्टीप्लाई हुआ 2 बार, तो ऊपर में log a² b² c² है, नीचे abc है, तो काट के वो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमको लगता है कि इट्स सिमिलर क्वेश्चन इज 11, यू कैन ट्राई। 12 नंबर को
के ले लो। क्या लेंगे? के क्यों लेंगे? 12 नंबर में के ले लो। log x by b minus c is equal to k, log y by c minus a is equal to k, log z by a minus b is equal to k। सबको k ले लो तो log x का वैल्यू हो गया, log x is k into b minus c, log y is k into c minus a, और log z is equal to k into a minus b। अब निकालना क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन की तरफ देखो। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज log x to the power a, then y to the power b, then z to the power c। तो you break up log x to the power a plus into है y to the power b, z to the power c। तो पावर सामने आ जाएगा, a log x प्लस b log y प्लस c log z। तो क्वेश्चन में क्या किए? पहले log x को निकाल लिए, k इंटू ये log x का वैल्यू है k इंटू बी माइनस सी log y, k इंटू सी माइनस ए log z, k इंटू ए माइनस बी। हमको निकालना है x टू दी पावर a log प्लस, तो अब log x वैल्यू बैठा दो, log y का वैल्यू बैठाओ, log z का वैल्यू बैठाओ। When you replace the values, you will get a into kb minus kc, क्योंकि log x का वैल्यू दिया हुआ है। Similarly, b into kc minus ka plus c into ka minus kb। अब ब्रैकेट खोलो, देखो सब कट जाएगा, ए बी बी सी सी ए सब कट जाएगा, 0 होगा। तो हम ये तुम लोग को एक बार देखने के लिए बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर दिस इज 12। 13 नंबर इजी है, यू कैन डू। 13 नॉट टफ। 14 15 ट्राई करो। 16 से चेंज ऑफ बेस, 16 नंबर क्वेश्चन सब कट जाएगा। log r बाई log q, क्योंकि नीचे है, इनटू log 16 नंबर में log q बाई log p इंटू log r बाई log p, सब कटेगा। log p बाई log p सब कट जाएगा, ऑल विल बी कैंसल्ड। log p बाई log r, एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड, तो आंसर इज 1। log r कटेगा, log q log q log p log p, so answer is 1। so this question number 16 17 are similar, 18 similar, 16 17 18 are similar, 16 17 18 are similar, just like 16 you solve, you will get तीनों क्वेश्चन का। 19 में थोड़ा सा बताना है, जस्ट 19, सी नंबर 19। if you have any more question you can ask me, I'll do that also। 19 देखो, अच्छा क्वेश्चन ये आया था सीए फाउंडेशन, सीए कोर्स में। ये क्वेश्चन है 19 में, log x to the base y is equal to 100 और log x to the base 2 is equal to, sorry उल्टा लिख दी, y to the base x और x to the base ये है 10। so what is log y to the base x? माने log y to the base x माने log y by log x is equal to 100। and what about this? log x by log 2 is 10। दोनों को इंटू कर दो। क्यों इंटू करेंगे? तो log x कट जाएगा। log y by log x के साथ log x by log 2 इंटू करेंगे तो 100 के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, तो log x कट जाएगा, तो रह गया log y by log 2, that is 1000। now log 2 इधर ले जाओ, log y is equal to, तो ये 1000 ऊपर जाएगा, that is the, so answer is y is what? दोनों तरफ से log हटा दो। तो क्वेश्चन नंबर 19 कैसे किए? चेंज ऑफ बेस अप्लाई किए। हम उस दिन जो प्रॉब्लम करवाए थे ये थोड़ा हटके था। ये क्वेश्चन 19 log y by log x by log 2 अलग करके इंटू कर दिए, तो इट इज कैंसिल। तो यू सी द आंसर, आंसर इज योर log हटा देंगे तो y होगा
2 to the power 1000. So that is your answer. Now if you have any more question, I have given the answer, you can give me the question, पूछ सकते हो, हम तुम लोग को क्वेश्चन का आंसर बता देंगे. तो आज हम यहाँ तक बताए. Anybody any question you can ask me if you have to, I'll explain. चलो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं.